Hello everyone, this is me Suruchi welcoming you to my channel SST Classes by Suruchi. Through my podcast, I want to help you understanding NCRT in a better and elaborated way. So my explanation of NCRT is word to word for you. So let's get started with today's lecture. Students, today we are going to start Political Science Chapter 1 Power Sharing. So, have your book and highlighter and let's continue with the chapter. Student, hope आपको मेरा पैटर्न समझ में आ गया होगा. I'm just explaining the NCRT chapters word to word for you so that you can solve any of your query, any problem in any paragraph or any picture, anything. Okay. So this is my effort to teach my students very properly, word to word, sentence by sentence. So students, this is your political science chapter 1, power sharing. So let's continue. Political science is, you all are well known about this subject. In ninth class also, you have studied a lot of things. Like you can see the overview of this chapter. This overview is telling you that in the previous class, you have already understood like one organ. There are three organs actually: legislature, executive, and judiciary. Okay. So this is how this democracy of our country is designed. So now, in the beginning of this 10th class chapter 1, we are going to have the idea of power sharing. The idea of power sharing means, why do we need this power sharing idea? Why to share the powers? And what if we are not sharing the powers? So this chapter is beginning with two stories. One story is of Belgium and the other story is of Sri Lanka. You can see here, both these stories are about how democracies handle demands of power sharing. Okay, why power sharing was necessary, and one country has shared the power, they got the solution for any civil war, any critical condition to their country. And one country, we will see in this chapter, that they were not ready to share the power. So if they were not ready to share the power, what chaos they have faced. Okay, so let's continue this chapter. It is beginning with the story, or you can say a structure of Belgium. I'll definitely show some pie charts to define the population distribution. Okay, let me read it for you. You can also have to focus on your book also, just have a highlighter or a pencil. So students, first topic is Belgium and Sri Lanka. So Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. फर्स्ट लाइन इज वेरी इजी. हरियाणा से भी छोटा एरिया है इस कंट्री का, जो कि एक यूरोप में है, बेल्जियम. इट हैज बॉर्डर्स विद, इसके बॉर्डर्स शेयर होते हैं किससे? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़. बहुत ही थोड़ी सी पॉपुलेशन है यहाँ पे. इट्स अबाउट 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. लगभग अगर कंपेयर करें तो हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन. The ethnic composition of this small country is very complex. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड सबसे पहले ही आ गया आपके लिए, एथनिक कॉम्पोजिशन. एथनिक कॉम्पोजिशन आप इसी चैप्टर में नीचे की तरफ देखो, एक बॉक्स दिया हुआ है, ग्लॉसरी. ठीक है. एथनिक मीन्स अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities or physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. सिंपली आप इसका मतलब समझिए कि एथनिक का मतलब है जो बहुत बहुत पुराने टाइम से किसी कंट्री में रह रहे हैं, उस कंट्री में रहते हुए उनको बहुत टाइम हो गया है, और बहुत सी डाइवर्सिटी होते हुए भी, मे बी उनके रिलीजन सेम ना हो, मे बी उनकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, मे बी बहुत से उनके कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर फिर भी वो एक बहुत लंबे समय से एक कंट्री का हिस्सा है, और लगभग उनके एंसेस्टर्स भी उसी कंट्री को बिलोंग करते हैं. ठीक है. So the ethnic composition of this small country is very complex. अब ये complexity क्या है? I will definitely show a pie chart
Just let me read this paragraph for you first. Of the country's total population, 59% lives of the Flemish region speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonian region and speak French. Remaining 1% of the Belgian speak German. You can see students कि यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं. क्या बताने की कोशिश की गई है कि पूरे बेल्जियम में 59% लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन को बिलोंग करते हैं और 59% फ्लेमिश रीजन को बिलोंग करने वाले लोगों की भाषा है डच. 40% लोग वेलोनिया रीजन को बिलोंग करते हैं और उनकी लैंग्वेज है फ्रेंच. दे स्पीक इन फ्रेंच. ओनली 1% पीपल बिलोंग टू रिमेनिंग अदर रीजन्स एंड दे स्पीक जर्मन लैंग्वेज. ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग पीपल की और माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन तो बहुत ही कम है. ठीक है, ये सिचुएशन पूरे बेल्जियम की है. बट इसके कंट्रास्ट आप देखिए नेक्स्ट लाइन में. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग. यानी कि ब्रुसेल्स यानी इनकी कैपिटल में बिल्कुल ही अपोजिट है. क्या अपोजिट है? 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% पीपल डच स्पीकिंग है. ठीक है, आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं. मैंने एक पाई चार्ट प्रिपेयर किया है, आप इसको समझ सकते हैं. जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पूरे ब्रसल्स का सिचुएशन सिनारियो क्या है. 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं. 40% पीपल वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं. केवल 1% लोग जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, स्कैटर्ड हैं, वो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जबकि इसके उलट इनकी कैपिटल ब्रसल्स में इसका सिचुएशन उल्टा है. जो माइनॉरिटी है कंट्री में वो मेजॉरिटी हो जाती है कैपिटल में और जो मेजॉरिटी है कैपिटल में वो हमारी उनकी कंट्री की माइनॉरिटी है. ठीक है, यानी ब्रसल्स इनकी कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग है. ठीक है, अब जो माइनॉरिटी है और जो मेजॉरिटी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये पढ़ने को आते हैं आगे. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. क्योंकि ये माइनॉरिटी कैपिटल में मेजॉरिटी है इसलिए फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा रिच और पावरफुल है. अब आप कहेंगे कैपिटल में ये मेजॉरिटी है तो इससे क्या डिफरेंस होता है? हाँ, किसी कंट्री की कैपिटल उस कंट्री के पॉलिटिकल पावर को इंडिकेट करती है. ठीक है, अगर एक कम्युनिटी जो कि कंट्री में माइनॉरिटी है मगर कैपिटल में मेजॉरिटी है तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है, यानी कि उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है. दैट इज वाई फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोज हु वर माइनॉरिटी इन द होल कंट्री बट in majority in the capital, they are relatively rich and powerful. This was resented by Dutch speaking community who got the benefits of economic development and education much later. ठीक है, अभी इसका साइड इफेक्ट क्या है? जो फ्रेंच पीपल हैं वो रिच भी हैं, उनके पास पावर भी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं उनके पास कंपैरेटिवली एजुकेशन के और दूसरे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लेट पहुंचती है. दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को माइनॉरिटी होने पर ज्यादा बेनिफिट है और मेजॉरिटी होने पर कम बेनिफिट है तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो उनके बीच क्लैशेस होंगे और ये क्लैशेस उनके बीच टेंशन डेवलप करेंगे. ठीक है, तो 1950s से लेकर 1960s इस 10 ईयर के टेन्यूर में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन रही. ठीक है, द कंट्री वाज फेसिंग दिस काइंड ऑफ tension between these two communities. The tension between the two communities was more acute in Brussels. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुई? कैपिटल में. भाई सबका ये टसल रहा ना कि जो कंट्री में माइनॉरिटी है वो यहाँ मेजॉरिटी बन के रूल कर रहा है, ये कैसे टॉलरेट हो लोगों से. ठीक है, तो टसल सबसे ज्यादा ब्रसल्स ने फेस किया. ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम
What was that special problem? The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. बस मैंने वही बात आपको बताई कि प्रॉब्लम वही थी, जो लोग कंट्री में मेजॉरिटी थे वो बेचारे कैपिटल में माइनॉरिटी बन गए थे, और प्रॉब्लम और टसल यहीं से क्रिएट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये एक स्टोरी बता दी, आप इसको रिवाइज करने के लिए दोबारा से इतना पोर्शन देख सकते हैं इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए दूसरी स्टोरी यहाँ पे जो आपको बताई गई है वो है श्रीलंका की। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। दूसरी कंट्री है श्रीलंका, ये एक आइलैंड नेशन है, सदर्न कोस्ट यानी कि तमिलनाडु, हमारी कंट्री के तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। It has about 4 crore people. It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। अगर कंपेयर किया जाए तो हरियाणा के लगभग इक्वल ही इसकी पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, दूसरी और साउथ एशियन कंट्रीज या रीजन की तरह श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब देखो, अभी जो बेल्जियम की हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी या थोड़ा सा उसका हिंट पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी कि उनके पास डाइवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें से जर्मन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, बट आप श्रीलंका में देखोगे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्या डाइवर्सिटी है, लेट्स चेक। इसके लिए भी पाई चार्ट अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसके पाई चार्ट को। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। यहाँ पे आप जो काउंट करके देखोगे ना कि तो ये 100% से ऊपर जा रहा है, फिर आप कंफ्यूज होगे। तो बेटा ये जो तमिल स्पीकर का टॉपिक है ना, ये इसके बारे में ये है कि इसके लोग माइग्रेंट्स भी होते थे, तो कभी कभी 1-2% पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो जाती थी। ठीक है, तो ये तमिल स्पीकर्स 18% है। बेसिकली समझिए, जैसे हम लोगों ने अभी बेल्जियम के टॉपिक में पढ़ा ना, एथनिक ग्रुप, यानी कि श्रीलंका के मेन मूल निवासी कौन थे, सिन्हाला स्पीकर्स, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है या वो कितने परसेंट है, 74%। कह सकते हो कि सिन्हाला स्पीकर्स आर द मेजोरिटी इन श्रीलंका। ठीक है, बाकी 74% के अलावा यहाँ पे कौन रहता है, दे आर तमिल स्पीकर्स। ठीक है, अमंग तमिल स्पीकर्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल स्पीकर भी 2 भागों में बटे हैं, 2 और उनके सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। यानी कि तमिल नेटिव्स यानी कि जो लंबे समय से श्रीलंका में ही रह रहे हैं उनको बोला गया श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 13%। टोटल जो रह रहे हैं वहां पे तमिल्स, वो कितने हैं मैंने बताया अभी आपको, 18%। तमिल स्पीकर कितने हैं, 18%, और श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं, 13%। बाकी के जो 5 बचते हैं वो मिक्स हैं। ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा कि वो कौन है। देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा सा मैप दिया हुआ है बेल्जियम का। ठीक है, मैंने आपको पाई चार्ट में समझाया ही है। आई थिंक पाई चार्ट में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये श्रीलंका की स्टोरी में। The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils। ठीक है, 13% में जो 5% लोग बचे, देखो यहाँ पे परसेंट क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तुम समझ लेना कि लमसम आइडिया है। ये मत बिल्कुल मैथ्स की तरह करना कि अरे ये 1% कहाँ गया, 2% कहाँ गया। दिस इज जस्ट लमसम आइडिया। ठीक है, सो जो 13% श्रीलंकन तमिल के अलावा जो इंडियंस हैं यहाँ पे, उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक है, वहां श्रीलंका में ही रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके 4 फादर्स इंडिया से श्रीलंका ले जाए गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स की कमी थी, इसलिए तमिल लोगों को श्रीलंका में एज अ वर्कर, प्लांटेशन वर्कर ले जाया गया। आई होप आपको बात समझ आ रही हो। बेटा अगर नहीं समझ में आता तो इस इतने ही पोर्शन को आप दोबारा से करके देख लेना। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, देखो बढ़िया से एक मैप दे रखा है आपके एनसीईआरटी में।
आपकी स्क्रीन पर भी है, देख रहे हो आप, मैप देख रहे हो, यहाँ पे कलर इंडिकेट कर रखे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैप तो आप अपने बुक में देख के अच्छे से स्टडी भी कर सकते हो। अभी पैराग्राफ पे आते हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. अब देखो, श्रीलंकन तमिल्स जो हैं, यानी कि है तो वो सब तमिल्स, बट जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, सिन्हाला भाषा है, ठीक है। मोस्ट, ये श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा, श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज है सिन्हाला। Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. देखो यहाँ पे रिलीजन का भी डिवीजन है, ये ऐसा ऐसा मतलब इतना ज्यादा डाइवर्स है कि रिलीजन भी अलग है और भाषा भी अलग है, यानी कि केओस बड़ा होने वाला है। तो ज्यादातर बताया गया है कि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, आप ये भी लिख सकते हो सिन्हालीज, ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। सिन्हालीज जो है वो ज्यादातर बुद्धिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स, देयर वर 7% क्रिश्चियंस हु वर बोथ तमिल एंड सिन्हाला स्पीकर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है डाइवर्सिटी श्रीलंका की, ठीक है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अगर इतनी डाइवर्सिटी है तो श्रीलंका में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये पैराग्राफ जो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, ये कंपैरेटिव पैराग्राफ है। इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. ठीक है, बेल्जियम का क्या सीन है कि डच कम्युनिटी, क्योंकि एक न्यूमेरिकली एडवांटेज है उनके पास, यानी कि डच क्या है, मेजोरिटी में है, इसलिए वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को फोर्स करते हैं। फोर्स करने का मतलब एक तरह से कह लो कि डोमिनेट करते हैं कंट्री में। this would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अगर ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, तो उसका रिजल्ट, एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि कंट्री का पार्टीशन हो जाए। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। दोनों ही कम्युनिटीज, जो कहीं मेजोरिटी है कहीं माइनॉरिटी है, वो ब्रुसेल्स पर अपना अधिकार क्लेम करने लगेंगी। इन श्रीलंका, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। श्रीलंका की सिचुएशन में जो मेजोरिटी है, उसकी मेजोरिटी तो और भी बड़ी है, और भी वास्ट है, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी विल, यानी अपनी ही डिजायर्स को, अपनी ही इच्छा को कंट्री के बाकी लोगों पर इम्पोज करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अभी देखते हैं दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन निकाले, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे बताया गया है श्रीलंका ने किस पैटर्न को फॉलो किया। भाई, अपने पूरी डाइवर्सिटी पढ़ ली, एथनिक ग्रुप पढ़ लिए बच्चों। जो एथनिक ग्रुप टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है ना, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है और कैसा वेरिएशन है, ये अपने आप में एक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके नोट्स आप उस तरह से प्रिपेयर करिएगा, एंड आई डेफिनेटली विल प्रिपेयर शॉर्ट वीडियोस टू प्रिपेयर योर आंसर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखिए, इस वर्ड में एक मेन वर्ड है, दैट इज मेजोरिटी, ठीक है। मेजोरिटी वर्ड से बना है मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि श्रीलंका में एक ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया जिस आइडियोलॉजी में मेजोरिटी ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. ठीक है, इंडिपेंडेंट होने के बाद 1948 में इंडिपेंडेंट होने के बाद श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी ने ही अपनी डोमिनेंस बना के रखी गवर्नमेंट पर, और उन्होंने अपनी मेजोरिटी पर ही काम करना शुरू किया। मतलब उन्होंने अपनी मेजोरिटी को ही सबसे ज्यादा सुपीरियर मानकर
उसे ही आगे फॉरवर्ड किया। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। देखो ये लाइन अपने आप में बड़ी कंट्रास्ट सी है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी सरकार तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, मगर उस गवर्नमेंट ने ऐसे मेजोरिटेरियन मेजर्स का इस्तेमाल किया जिससे कि केवल और केवल सिन्हाला सुप्रीमेसी ही स्टैब्लिश होती है। यानी कि आप डेमोक्रेटिक भी हैं, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक ड्रॉबैक डेमोक्रेसी का है कि आपको उसमें मेजोरिटेरियन वोट मिल जाए, यानी मेजोरिटी वोट कर दे तो आपकी हर हाँ हाँ में बदल जाएगी, यानी कि उसको ना में चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यही किया एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स स्टैब्लिश किए। बच्चों ये क्वेश्चन भी है, व्हाट वर द मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, तो इसको आप एक क्वेश्चन की तरह भी प्रिपेयर करें। इस पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। ठीक है, यानी 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि सिन्हाला ही कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और ये डिक्लेयर करते ही उन्होंने तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, यानी कि ऑटोमेटिकली आपने दूसरी भाषा को डाउन कर दिया, क्योंकि इसी भाषा यानी अपनी सिन्हाला लैंग्वेज को ही उन्होंने सुपीरियर डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. पहली चीज इन्होंने क्या करी इस 1956 के एक्ट में, सिन्हाला वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा चीज क्या किया उन्होंने, दोज हु वर सिन्हाला पीपल they were favored in all university positions, in all educational opportunities and in government jobs। मतलब इनको इंपॉर्टेंस दी गई, प्रेफरेंस ज्यादा दिया गया सिन्हाला एप्लीकेंट्स। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही रिलीजन को फॉस्टर करने का निश्चय किया। क्या कि कंट्री का एक ही धर्म कंट्री में माना जाएगा, वो है बुद्धिज्म। देन व्हाट अबाउट हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, यानी उनको तो बहुत ही बुरा लगेगा कि अरे कंट्री के नेशनल रिलीजन में डिसाइड हो गया, नेशनल लैंग्वेज पे डिसाइड हो गई, अब हमारे रिलीजन या हमारी भाषा का क्या होगा। ठीक है, वो डेफिनेटली ऑफेंडेड फील करेंगे, एलिनेटेड फील करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में 3 पॉइंट्स है, इसे अच्छे से याद करिएगा कि कौन सा एक्ट किस ईयर में आया, 3 बातें कौन सी हैं, इनको आप हाईलाइट करके देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इसको पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, जैसे सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी चीज, preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। तीसरी बात, state shall protect and foster Buddhism। ये है आपकी पहली चीज, ये हो गई आपकी दूसरी चीज, ये हो गई आपकी तीसरी बात। ठीक, तो 3 ये बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एक आंसर को प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। ऑब्वियस सी बात है, यही चीज मैंने अभी बोली कि जो भी गवर्नमेंट ने अपने मेजर्स अपनाए ना, ऊपर मैंने बताया आपको, उनकी वजह से जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने एलिनेटेड फील करना शुरू कर दिया। फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज, मतलब उनको लगा कि अरे हमें तो अलग ही छोड़ दिया गया, हमारे लिए तो कहीं कोई बात ही नहीं करी जा रही है। ठीक है, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। उनको यही बात लगी कि जो भी सिन्हाला लीडर्स हैं, यानी कि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, सिन्हाला भाषा बोलते हैं, ऐसे लीडर्स जिन पॉलिटिकल पार्टीज को रन कर रहे हैं
वो श्रीलंकन तमिल्स की लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। उन्हें ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि बुरा लग रहा होगा जो श्रीलंकन तमिल्स है। ठीक, उन्हें केवल अपने मेजोरिटेरियन एटीट्यूड को ही बूस्ट करना था। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने क्या महसूस किया, ये जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ क्या कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। देखो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि श्रीलंकन तमिल्स ने एलिनेटेड फील किया तो क्यों किया, तो पहला रीजन उसका ये है, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा टॉपिक पॉइंट है, दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट Sinhala people in getting jobs and other opportunities and they felt ignored their interest। यानी गवर्नमेंट उनके किसी भी इंटरेस्ट को फुलफिल करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। ये तो बिल्कुल होना ही था कि थोड़े समय में क्या हो गया, जो सिन्हाला ग्रुप है या कम्युनिटी है और तमिल कम्युनिटी से इन दोनों के रिलेशंस खराब हो गए, इन दोनों के रिलेशंस में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि एक तरह से श्रीलंकन तमिल्स ने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को वैल्यू दिलवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू करी, स्ट्रगल शुरू किया ताकि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। दूसरा क्या चाहते थे, पहला फिर से बता दूं मैं आपको, ताकि उनकी भाषा यानी तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरा, उनको भी जॉब और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। जितनी भी बार उन्होंने अपनी ये डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने, उतनी बार उनकी डिमांड्स को डिनाई कर दिया गया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern part of Sri Lanka। मैंने आपको जब ये पोर्शन पढ़ाया था ना श्रीलंका के बारे में, तब बताया था ज्यादातर श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रहते थे, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। ठीक है, जब इनकी सारी डिमांड्स बार बार डिनाई होती रही तो 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमिल्स ने बनाई थी, उन्होंने एक डिमांड रखी कि जिन एरियाज में हम लोग रहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में जहां हम रहते हैं, हमारी डिमांड है कि उन्हें तमिल एलम डिक्लेयर कर दिया जाए, हमें इंडिपेंडेंट तमिल एलम दे दिया जाए, यानी कि तमिल्स के लिए ही वो एरिया डेडिकेट कर दिया जाए, हम अपने तरीके से अपने चीजें मैनेज करेंगे। ठीक है, तो उनकी ये जो डिमांड थी तमिल एलम वाली, ये डिमांड उन्होंने 1980s में गवर्नमेंट के सामने रखी। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। ठीक है, ये जो डिमांड रखी, ऑब्वियस सी बात थी, इस डिमांड को भी बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम कर गया, इतना ज्यादा क्लैशेस हो गए, इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट लोगों में हो गया कि ये सिचुएशन एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। बच्चों, सिविल वॉर का मतलब होता है जब अपनी कंट्री के ही सिटीजन्स आपस में कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज, चार कम्युनिटीज आपस में ही लड़ झगड़ जाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर सिचुएशन। तो श्रीलंका में भी क्या क्रिएट हो गया, सिविल वॉर क्रिएट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर thousands of people of both the communities have been killed। ये तो होना ही है, बहुत सारे लोग मारे गए। many families were forced to leave the country as refugees। बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्री छोड़ दिया डर से जान बचाने के लिए और रेफ्यूजी बन गए। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइवलीहुड्स को खो दिया।
ठीक है। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, उस चीज को कंसीडर करते हुए आप देखिए अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आप सोचो, श्रीलंका ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अच्छा किया, एजुकेशन भी अच्छी करी, हेल्थ भी अच्छी करी, मगर ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आपको क्या बता रहा है कि वहां पे सिविल राइट्स यानी कि सिटीजन्स के राइट्स को लेकर बहुत ही केओस रहा और अभी भी है। ठीक है। तो किसी भी कंट्री को उसकी खुशहाली पर भी जज करना चाहिए कि वहां के सिटीजन्स कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं अपनी गवर्नमेंट को लेकर के। ठीक है। But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. ठीक है। सिविल वॉर का इम्पैक्ट तो सब पे पड़ेगा, पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो या सारी जितनी सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ होती है सब अफेक्टेड होती है। ठीक। तो आप देखिए जो भी एथनिक जो डाइवर्सिफिकेशन था, जितनी भी वैरायटी थी यहाँ पे, गवर्नमेंट ने पावर शेयर करना पसंद नहीं किया और ना करने का रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ तक का कंटेंट पढ़ लिया है। सो अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जो भी कंटेंट हम लोगों ने आज पढ़ा है, जितना भी पोर्शन, आप उसे प्लीज अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई क्वेरी हो तो फिर मैं बोल रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए जो नोट्स है मैं आपके शॉर्ट वीडियोस में प्रिपेयर करके आपके लिए रिलीज जल्दी ही करूंगी। ठीक है। ठीक है। तो आगे का टॉपिक जो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, देखते हैं बेल्जियम ने क्या अपनी कंट्री के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकोमोडेशन अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो तब तक के लिए इस कंटेंट को आप रिवाइज करिए। होप ये टॉपिक आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। और प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जिनको जरूरत है उनके साथ इसे शेयर भी करिए।